Now let's talk about genetic drift and the founder effect. Selection pressures are not the only factor that determine which individuals survive and reproduce. Chance can come into the equation too. Chance is more likely to have a significant effect in the population is very small, but imagine a very small population of plants in which there are two plants which have white flowers and three plants have yellow flowers. दो ऐसे प्लांट हैं जिनके पास व्हाइट फ्लावर है और तीन ऐसे हैं जिनके पास येलो फ्लावर है. It could happen that just by chance the seeds from the white flowers fall on unsuitable ground while a few seeds from the yellow flowers fall in a better area जहाँ पे सॉइल भी अच्छी है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं सॉइल में, जहाँ पे पानी भी गलती से अच्छा मिल रहा है. तो क्या होगा, कैन यू टेल मी? There's going to be a change, and obviously the white flowers, they won't last anymore, and the yellow बिल्कुल. flowers are obviously able to survive, and they reproduce, and then obviously they take over what the white flowers used to be. So एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे ना आपके एनवायरनमेंट का कोई कसूर है ना म्यूटेशन का कसूर है. दिस वाज रैंडम बाय चांस. आपका सीड एक अच्छी जगह गिर गया, दूसरा बुरी जगह गिर गया जो बिल्कुल बंजर थी. Over several generations, the alleles for the white flowers would could completely lost just by chance. We call it a genetic drift. Genetic drift is a change in the allele frequency that occurs by chance, not as a result of natural selection. ये definition आती है. It is most likely to happen when a small number of individuals are separated from the rest of the large population as well. वो भी एक genetic drift है. अगर आप सोचो, अगर आप ब्लैक वालों को स्पेकल वालों से अलग ही कर देते क्योंकि उनकी नहीं बन रही आपस में, ठीक है, उनको प्रीडेटर उसी वाले को खाता है जो नजर आ जाता है. ये तो गलत बात है. घर बदल दो. ठीक है. आपके पास जब दोनों पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही है और आपको नजर आ रहा है कि यार ये इनमें से दोनों टाइम पे तो दोनों जिंदा रहते नहीं है. क्यों? क्योंकि एक एनवायरमेंटल फैक्टर एक को फेवर करे तो दूसरे को नहीं करता. जब दूसरे को करता तो पहले वाले को नहीं करता. मतलब इनकी आपस में नहीं बन सकती. दोनों मॉथ्स एक टाइम पे नहीं रह सकते एक साथ. तो आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए? चुप के ले जाओ दूसरी पॉपुलेशन को, उनको अलग ही एरिया में ले जाओ. अब क्या दोनों एलील्स की अपनी अपनी पॉपुलेशन बड़ी हो सकती है? yeah. हो सकती है. आपने एनवायरनमेंट ही बदल दिया. आप ब्लैक वालों को रहने दो, वो बहुत खुश हैं पॉल्यूशन में. आप स्पेकल्ड वालों को वहां से ले जाओ. अब तो प्रीडेटर स्पेकल्ड वालों को नहीं खाएगा ना, क्या पता मजबूरतन उसको ब्लैक वाले ही ढूंढने पड़े. देयर कैन बी मेनी रीजंस. So genetic drift is the gradual change in allele frequency in a small population where some alleles are lost or favored just by chance and not by natural selection. Indeed, in a small population, some alleles may not be present at all, and the gene pool is the complete set of genetic information in a population. It may be smaller than that of our original population, but consequently, एक gene pool क्या होता है? Gene pool है कि एक बाग में, एक पार्क के अंदर क्या जीन पूल है? रेड फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स, थोड़े बहुत ऑरेंज, बाकी वाइट, ये जीन पूल है. ठीक है. एक ग्रुप है, द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ पॉपुलेशन. Consequently, the changes in the allele frequency of this population may take a different direction from that of a larger parent population as well, just because of this chance effect, and not because the selection pressures were acting on them. This process, occurring in a recently isolated small population and resulting from only part of the gene pool being present, is called a founder effect. फाउंडर इफेक्ट क्या है कि अगर यही सारा प्रोसेस, ठीक है, यही सारा प्रोसेस के चांस से फर्क हो, सिलेक्शन प्रेशर से ना हो, अकरिंग इन अ रिसेंटली आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशन, आपने आइसोलेट कर दिया उस पॉपुलेशन को, अभी भी हो रहा है कोई मसला, उसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट. So what is the gene pool? The complete range of DNA base sequences in all the organisms in a species or population. Whereas founder effect is the reduction in a gene pool compared with the main populations of the species, resulting from only two or three individuals with only a selection of the alleles in starting of a new population. Example देखते हैं. There is a very large number of small islands in the Caribbean. Caribbean islands बहुत सारे हैं. And anole lizards live on most of them. Lizards can be carried from one island to another on a floating vegetation. ठीक है, वो कुछ पत्ते होते हैं ना जो सी में तैरते हैं. उस पत्ते के ऊपर एक छिपकली बैठ जाए, दूसरे आइलैंड तक तैरती तैरती पहुंच जाए. इट इज जस्ट अ चांस कि विच इंडिविजुअल लिजर्ड लैंड ऑन विच आइलैंड एंड विच कॉम्बिनेशन ऑफ एलिज दे विल कैरी. मुझे नहीं पता वो ब्लैक लिजर्ड गया, ग्रीन लिजर्ड गया, कौन सा पत्ते के ऊपर बैठा और कश्ती से तैरता तैरता दूसरे आइलैंड पहुंच गया. किस आइलैंड पहुंचा है, कौन सा लिजर्ड पहुंचा है, उसके एलिल्स क्या थे, चांस है.
There will be many other alleles in the gene pool of the population as well on the original island, but only a small selection of them in a small number of lizards that arrive on the new island. अब जो आए हैं उसके ऊपर उनका तो स्मॉल ही नंबर होगा, जो वहां पहले से रह रहे हैं वो ज्यादा थे. So if the original population of the lizards had a range of coloration from green to brown, but the only two that floated to the new island were both green, then all the population that develops on the new island might all be green. क्यों? वहां पे जो ऑलरेडी रहे तो ब्राउन भी थे, ग्रीन भी थे. जो और मजीद आ गए इधर वो कौन थे? वो भी ग्रीन ही थे. क्या ओवर टाइम हो सकता है कि इनका जीन पूल बढ़ता जाए? गॉट इट? क्यों? Okay. प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. दिस डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बट एक चांस था कि वो वाले एलील ज्यादा होते गए. थोड़ी देर बाद एक और डेजर्ट तैरता तैरता पहुंचा, पता लगा वो भी ग्रीन है. अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर था जिसकी वजह से ब्राउन खत्म हो गए. यहाँ ना ही ब्राउन को कोई डिजीज लगी, ना ही ब्राउन में कोई म्यूटेशन हुई, ना ही ब्राउन को किसी ने खाया. बस उनकी पॉपुलेशन कम रह गई. क्यों? क्योंकि एलील बाहर से और ग्रीन वाले आते जा रहे थे, ब्राउन वाला एलील कहीं बाहर से आया ही नहीं. दिस इज ऑल्सो बाय चांस. It is difficult to study the founder effect because people are not often in the right place at the right time to see the individuals arriving in their new habitat. आपको देख के पता लग रहा है इस चीज को वैसे इन्वेस्टिगेट करना, सोचो साइंटिस्ट के लिए कितना मुश्किल है इस फाउंडर इफेक्ट को स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है ना जिसको आप देखो. चांस को आप कैसे मेजर कर सकते हो? पॉपुलेशन गिन के? ना कोई म्यूटेशन है, ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको आप स्टडी करो, उसके कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट लगाओ कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहे नहीं आ रहे. इट्स ऑल बाय चांस. ग्रीन वाले तैर के आ रहे हैं, ब्राउन वाले को पसंद नहीं है आइलैंड, या वो क्यों नहीं गलती से बैठ रहे उस कश्ती पे, ये चीज साइंटिस्ट कैन नॉट स्टडी द फाउंडर इफेक्ट एट ऑल. बट इन 2004 a hurricane resulted in several islands of the Bahamas becoming completely submerged in water for a time. Now, when the water subsided, scientists found that all of the lizards on even seven small islands had been killed, and not one living lizard was found. The two lizards placed on each island reproduced, so that the population on each island grew, and the researchers collected the lizards from each of the islands over the next 4 years. फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया. अब 7 आइलैंड्स पे जो पहले वाले lizards थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन जो बाय चांस माइग्रेट कर गए थे ना तैर के, अब उनको साइंटिस्ट ने लिया और स्टडी करना शुरू कर दिया फॉर द नेक्स्ट फ्लोर. उनके लेग लेंथ, उनका साइज, उनका खाना, उनका पीना, हर चीज वहां पे उन्होंने स्टडी कर दी थी. दिस इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट. They found that the mean leg lengths of the lizards on each of the small islands gradually got less. अब स्टडी करना शुरू किया आपने, क्योंकि आपको नजर आ रहा है इसका जीन पूल तो बढ़ता जा रहा है. The original lizards came from an island with a large vegetation, but now they are living on an island जहां में vegetation कम है. बट अब वो वापस ग्रो बैक भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हरिकेन ने डैमेज कर दिया उस एरिया को. However, the researchers also found that the mean leg length of the lizards were correlated with the leg lengths of the two randomly selected lizards that have been placed on each island as well. For example, if the pair of lizards placed on island A had relatively long legs and those placed on island B had relatively short legs, then after 4 years, mean leg length on island A was more than island B. क्योंकि island B वाले तो कहीं से आए थे, उनके पीछे तो कोई रहा नहीं है, लेकिन आइलैंड ए वाले तो वहीं के रहने वाले थे. वो भी क्या है, इट्स नॉट बीन अफेक्टेड नॉट ओनली बाय द सिलेक्शन प्रेशर. सिलेक्शन प्रेशर बेशक है, ऑन द साइज ऑफ वेजिटेशन इज अ सिलेक्शन प्रेशर कि वहां पे खाना पीना कम मिल रहा है, बट ऑल्सो इट वॉज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द सेट ऑफ एलियंस ब्रॉट टू द आइलैंड बाय द ओरिजिनल पेरेंट्स. आपके पास जो ओरिजिनल पेरेंट्स कौन से आए थे? ग्रीन वाले. कसूर तो उनका हुआ ना कि वो आए, ब्राउन वाले नहीं आ सके थे, क्योंकि उनके भी आगे जो बच्चे थे वो भी सारे ग्रीन थे. सो दिस इज सिलेक्शन प्रेशर. बेशक हुआ कि वेजिटेशन की उनको आदत थी, उनके अपने घर पे लार्ज वेजिटेशन थी, यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कसूर आपका भी है कि आप ही आए ना, ब्राउन वाले तो आए ही नहीं थे. इज इट ऑल क्लियर? Yeah. गुड. लास्ट बस ये पढ़ लेते हैं, द बॉटल नेक इफेक्ट. Something similar to the founder effect can happen if the population that was originally large suffers a significant fall in numbers. अब कैसे भाई? The cheetah is a species that is in danger of extinction. Today, all cheetahs are genetically very similar to each other and they show very little phenotypic or genotypic variation. Snow leopards नहीं मिलते अब. एक ही चीता रह गया, ठीक है. एक ही चीता की पॉपुलेशन है. यू हैव नेवर हर्ड कि इस चीता की और कितने कलर्स, कितनी टाइप्स हैं. इनकी फिनोटिपिकली और जीनोटिपिक वेरिएशन बहुत कम हो गई है. Many cheetahs are homozygous at a very high proportion of their gene loci,
In other words, there are not many different alleles present in a population. Less than 5% of the genetic variation that is normal within any animal species. This lack is also concerned to many conservationists. इनको टेंशन पड़ गई है जो conservationists होते हैं, as it puts cheetahs in a very high risk of extinction. क्योंकि without any genetic variation, can you tell me why are they scared about these cheetahs? कि इनकी genetic variation नहीं है? So if there isn't a genetic variation, they're not going to be able to survive in the environment. Just basically, they're not fit क्यों to नहीं? survive. They're not. Sir, अगर genetic variation होगी, so they can like obviously survive and adapt to the changes in the environment, and their alleles allow them to do so. And so if that genetic variation isn't there, they're not able to camouflage better. They're not able to hunt better. They're not able to survive as a whole. हम्म। So मैं तो थोड़ा yeah. सा मुझे करेक्ट करना था। जेनेटिक वेरिएशन है Okay. कि इनकी टाइप्स नहीं है। जेनेटिक वेरिएशन का ये नहीं Okay. कि इसकी अडॉप्टेबिलिटी क्या है। मसला इसकी अडॉप्टेबिलिटी पे नहीं है, ये अभी अच्छा है, मजे में जी रहा है, खुश है। इसकी और टाइप्स नहीं है, इसकी किस्में नहीं है कि मैं कहूँ कि ये वाली किस्म कुछ अरसा रहेगी, दूसरी वाली उसकी टाइप ज्यादा रहेगी, तीसरी वाली टाइप अगले 100 साल जी सकती, चौथी वाली टाइप 5 साल जिएगी। टाइप्स ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आ रहा है कंजर्वेटिव्स को कि इसकी वेरिएशन नहीं है। इसके अंदर के एलील्स की बात नहीं करें, जेनेटिक वेरिएशन होती है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। चीता Yeah. की और टाइप्स नहीं है जिनसे मैं कंपेयर कर सकूं कि ये वाला और वो वालों में क्या फर्क है। समझ आई? Mm-hmm. पांडास में कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है। लोग कंसर्न कि पांडा की टाइप्स नहीं है, वही है। अगर एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट आया, कोई क्लाइमेट चेंज आया, आइस कैप्स मेल्ट कर गई, वही वाली जाएंगी और वही वाली सारी जाएंगी। ये नहीं कि मैं कंपेयर करूं कि यार नहीं ये वाली नहीं तो उसकी जो दूसरी किस्म है ना वो जी लेगी। किस्में नहीं है। दैट इज द कंसर्न टू द कंजर्वेशनिस्ट। गॉट इट? Yeah. बिकॉज विदाउट जेनेटिक वेरिएशन का ये मतलब नहीं कि उसके जीन्स ऐसे हैं। जेनेटिक वेरिएशन का There's no मतलब, backup. हाँ जेनेटिक वेरिएशन है, इसकी बाकी किस्में हैं कि शायद बाकी जो इसकी 3 टाइप से चीता ए बी सी वो सरवाइव कर जाए, डी वाला मर जाए। ठीक है, किस्में ही नहीं है। जेनेटिक वेरिएशन नहीं है कि मैं आगे एलील्स पास ऑन कर सकूं, क्योंकि किस्में बिल्कुल फर्क तो नहीं होती ना। ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उन बाकी टाइप्स में कुछ ना कुछ एलील्स होते हैं, तो ऊपर से जब किंगडम को देखते हैं, फाइलम क्लास ऑर्डर, कहीं से तो चीता सारे एक जैसे हैं ना। बेसिक स्पीशी फर्क है। स्पीशी और हो तो सही, ताकि मैं कहीं ना कहीं से इनको दोबारा बना लेता। क्यों? ए बी सी अगर जिंदा रहती, डी मरने दो। आई नो कि इधर से कहीं से पीछे जाके इनके एंसेस्टर्स कनेक्ट होते होंगे। मैं आगे आने वाले वक्तों में दोबारा कनेक्ट करवा दूंगा। वेरिएशन नहीं है, इनकी टाइप्स नहीं है। दैट्स द कंसर्न टू दी कंजर्वेनिस्ट्स, कंजर्वेशनिस्ट्स। गॉट इट? Jesus. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? About 10,000 years ago, ये साइंटिस्ट साहब ने सोचा है कि when all but a few cheetahs were killed as a result of climate changes at the end of the last ice age, cheetahs found themselves living in small population where the only mates available were their close relatives. Over time, much of the genetic variation that was probably present in the earlier population, वो एक इस तरह के इवेंट को वो कहते हैं evolutionary bottleneck, a situation where majburatan you have to reduce the gene pool, where you had no other options and you mated with the same type, आपका gene pool greatly reduced from that a I had a period. question. Yeah. Okay, so like do hunters that used to hunt like back like maybe like hundreds of years ago and they still do it now, do they contribute to the evolutionary bottleneck or no? Yes, बिल्कुल। hunters is a Okay. selection pressure। Okay, fine. वो भी प्रीडेशन भी आ जाते हैं ना, एक तरह प्रीडेशन ही है ना। आप एक ही टाइप को, Yeah. हंटर्स भी तो अगर प्रीडेटर एक ही टाइप को हंट करे, क्योंकि उसको नजर ही वही आ रही है, उसको नजर ही काला वाला मौत आ रहा है, उसको नजर ही काला रैबिट आ रहा है। हंटर्स भी क्या कर रहे हैं? एक ही टाइप को किल करते हैं ना, एक ही टाइप को किल करने के लिए निकलते हैं ना फॉरेस्ट। वो भी प्रीडेशन, इट्स अ सिलेक्शन प्रेशर ह्यूमंस की तरफ से, ऑब्वियसली बिल्कुल है। आ, इस एक एक वो आप केस स्टडी पढ़ो ना, वो कौन से आइलैंड्स थे, डोडोज एक डक्स टाइप एक कोई ऑर्गेनिज्म था, विच वाज Yeah, एग्जैक्टली dodo आपको, bird. है ना? पता नहीं किस बुक में थी, Yeah. मैं भूल गया हूँ। गैलापागोस आइलैंड में डोडोस की पॉपुलेशन थी, दैट वाज ऑल Yeah. एक्सटिंक्टेड ड्यू टू हंटर्स, ओनली हंटर्स। और कोई वजह नहीं थी उसकी। वो डक्स की तरह कोई चीजें होती थी, तो उनकी आप कहानी पढ़ लेना। दैट वाज बिकॉज ऑफ हंटर्स, जो आपका सवाल है।
So evolutionary bottleneck is a period where the number of a species fall to a very low level, resulting in the loss of large number of alleles and therefore in the reduction in the gene pool of the species. And that is all for